سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نے فرمایا ہے کہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے پاس لگے گی، صحیح. سچ کے پاس بھیڑ نہیں لگنے گی، کیونکہ سچ جو ہے سچ رہتا ہے ہمیشہ. فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. لیکن کیا ہو گیا آج پیچھے سب سے پہلے؟ آپ پیچھے ہیں، تعلیم نہیں ہے، تعلیم کے تو توجہ نہیں ہے، نہ دین کی تعلیم ہے گی نہ دنیا میں تعلیم ہے گی. کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمارے بڑے بیکار ہو گئے ہیں. یہاں اس گاؤں کے اندر، کھیڑا افغان کے اندر، سلسلہ کے اندر آج تک کسی بھی نواب کے جو یہاں پر نواب کہلاتے ہیں، ذمہ دار کہلاتے ہیں، انہوں نے آج تک یہ ہمت نہیں پڑی کہ یہاں میڈیکل کالج بنوا دے یا ڈگری کالج بنوا دے یا بڑا مدرسہ بنوا دے. ہاں انہیں کہو خان صاحب سلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ بڑے جی نام؟ محمد غیور. غیور، ماشاء اللہ. اچھا غیور بھائی، ہم نا اسلامی کی ویڈیو بنا رہے ہیں، مطلب اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں. ساری دنیا کے بارے میں بات کرتے ہیں، راجنیتی کے بارے میں بات کرتی ہے، تو ہم اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں. اجازت تو کچھ بات کر لیں. اس کے بارے میں کیا بات کر سکتے ہو؟ آپ کو تو اجازت دینی ہے، میں بات کروں گا آپ سے. آپ بات کرائیے. ہاں ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے آپ کلمہ سنا دیجیے. کلمہ جی جی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کا معنی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، اس کلمے کا معنی کیا ہے یہ پوچھ رہے ہیں. آسان بات ہے، جو آپ کو نہیں پتہ ہے گھبرانے والی بات نہیں، میں بتا دوں گا انشاءاللہ. جو آپ کو نہیں پتہ ہے وہ میں بتا دوں گا. دیکھو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اللہ کے رسول ہے. ہاں، تو یہی تو کہہ رہے تھے ہم. یہ باتیں اصل میں جو ہے نا اسلام کی باتیں، جو اسلام کے متعلق اگر ہم بات نہیں کر پائیں گے تو یہ دقت ہی آئے گی نا. ماسٹر جی کا لوگ خیریت؟ آ جاؤ. ماشاء اللہ. ویسے تو آپ تو الحمدللہ ایکسپرٹ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت و جنت المقام دوزخ الحرام. سبھی دیش واسیوں کو میرا پیار بھرا آداب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھی بات کہی. آپ نے تمام دیش واسیوں کو سلام و کلام کر دیا، یہ بہت اچھی بات ہے. ہم نا اسلامی کے متعلق بات کرتے ہیں عوام سے، کیونکہ دنیا ساری راجنیتی کی بات کرتی ہے، فلاح کی بات کرتی ہے، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں. دیکھو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو یقین اللہ کی ذات پر رکھتا ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو انسان اللہ کی ذات پہ یقین نہیں کرتا ہے وہ ہمیشہ فیل رہتا ہے. لیکن ہمارے مسلم سماج کے اندر اس مشاعرے میں جو ہے، اس معاملے کے اندر جو ہے بہت لوگ پیچھے ہٹ چکے ہیں. جی جی. کیوں؟ ان کا یقین کمزور ہو چکا ہے. جی. کیوں؟ جو ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نے فرمایا ہے کہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے پاس لگے گی، صحیح. سچ کے پاس بھیڑ نہیں لگنے گی، کیونکہ سچ جو ہے سچ رہتا ہے ہمیشہ، اور سچا انسان ہمیشہ تنہا رہتا ہے. اور جہاں بھیڑ ہوتی ہے وہ لوگ جو ہے ہمیشہ منافق ہوتے ہیں. اور اکثر جو ہے لوگ منافق ہونے کے باوجود بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی نماز پڑھنا بھی بیکار ہے. کیوں؟ کہ دل کے اندر منافقت ہے. اور جہاں منافق انسان نماز پڑھتا ہوگا وہاں کبھی خیر و برکت کا نظارہ نہیں آئے گا. نظارہ وہیں آئے گا جہاں اللہ کے رسول کے متعلق سچ کو زندہ کرنے کا کام کرے گا، وہاں اللہ کی رحمتیں آئیں گی. اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ رحمت میں وہیں دیتا ہوں جہاں سچائی ہوتی ہے. میں نے بہار کے اندر، راجستھان کے اندر، اور جی کرناٹک کے اندر، تمل ناڈو کے اندر، اور جی آپ کا حیدرآباد تلنگانہ کے اندر، اور جی دلی کے اندر، ہریانہ کے اندر، پنجاب کے اندر، ہماچل کے اندر، اور جی اس کے اتراکھنڈ کے اندر جا کر دیکھا ہے، لوگوں کو سمجھا کر دیکھا ہے. تو اللہ کی ذات سے جو بات کہی ہے وہ اللہ نے بات پوری کر کے دکھائی ان لوگوں کو کہ سچ جو ہے کیا ہوتا ہے. کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا ہمیشہ مزہ ہوتا ہے سچ کا. تو ہمیں جو ہے سچ کو زندہ کرنے میں مزہ آتا ہے، اور جھوٹ کے ہم سخت خلاف ہیں. صحیح صحیح. ماشاء اللہ، بہت بڑھیا. دیکھو یہ مسلمان کی شان بھی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے. آج تو بول رہے ہیں، اور ہر آدمی بول رہا ہے. سب نے اسی کام پہ کمر کس لی ہے کہ جھوٹ بولنے پہ لگ رہی ہے، اور جھوٹ بول کے کمائی کرنے پہ لگ گئے ہیں. اللہ دیکھ رہا، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا کہ جو سچ کو زندہ کرے گا میں اس کا ہر طرح کا مان سمان رکھوں گا، اور اسے کہیں جے نیچا دیکھنے دوں گا. اور جو انسان جھوٹ کا سہارا لے کے آگے بڑھے گا اسے آج نہیں تو کل جو ہے نیچا کھانا پڑے گا. یہ منافقت کی بات جو آپ نے کہی ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی ہے کہ مسلمان کے اندر یہ بات کبھی پیدا نہیں ہو سکتی کہ بندہ دوسرے کو دھوکہ دینے والا ہو. مسلمان کے اندر یہ آج بات کر رہے ہیں، آج ایسا اکثر کر رہے ہیں. ہمارے جو لیڈر ہیں وہ دنیا سے وعدہ کرتے ہیں کھڑے ہو کے کہ آپ لوگ ہمیں جتاؤ،
आप लोग हमें मान सम्मान दो, हम आपका हर तरह का मान सम्मान रखेंगे। लेकिन जीतने के बाद में वो दिखते नहीं, जीतने के बाद में जो वादे करते हैं उस बात को पूरा नहीं करते हैं, इसीलिए आज वो फैल हैं। आज़म खान ने वादा किया, आज कहाँ है, क्या हाल है। मुख्तार अंसारी ने वादा किया, आज कहाँ है, इनकाउंटर हुआ है। जितने भी लीडर हमारे कौम से झूठ बोल करके जो है पार्लियामेंट में गए, ये विधानसभा में गए, उनका आज बुरा हाल है। चलिए खैर माशाल्लाह बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। अच्छा अगर अब बात की है राजनीति के मुतालिक कि राजनीति में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाए कि आपने ना जहाँ भी कदम रखा हमेशा सच का साथ देने की बात की है और हमेशा मुसलमानों को इस बात पे आमादा किया है कि सारे मुसलमान हमेशा सच बोलने की बात करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ए ईमान वाले, अल्लाह कह रहे हैं खुद कि ए ईमान वाले दुनिया के अंदर जा, सच को ज़िंदा कर, हुकूमत कायम कर, गरीबों के जान माल की हिफाजत कर, मैं तुम्हारी साथ हूँ। और आज बजाय हुकूमत कायम करने के हम गुलाम बने बैठे हैं, मुनाफिक बने बैठे हैं। इसीलिए अल्लाह की मार हम पर पड़ रही है और हमारी वजह से गैर ईमान वाले पिस रहे हैं। दूसरे लोग भी पिस रहे हैं। वो पिस रहे हैं, क्यों पिस रहे हैं कि करनी भरनी हमारी पिस रहे बिना वजह के में। अगर हमारे अमाल सही होंगे, हमारे यकीन सही होंगे, एक दूसरे की खिदमत करेंगे, एक दूसरे का मान सम्मान रखेंगे, तो इंशाअल्लाह सब पे जो है भलाई होगी, सबका फ़ायदा होगा। अच्छा दुनिया के अंदर सारे लोग अच्छा ही करने वाले बन जावे और सब लोग अच्छे बन जावे, इसके बारे में क्या कहो? अगर दुनिया के अंदर सब लोग अच्छे बन जाएंगे तो अल्लाह का फैसला है कि वहाँ हर तरह की रहमत होगी, हर तरह की बरकतें होंगी, वहाँ कोई मुसीबत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। जितनी भी अरब कंट्रियाँ हैं सब के अंदर मुनाफिक पैदा हो गए हैं। वो कौम को गद्दारी कर रहे हैं, कौम को बरगला रहे हैं, अपना उलू सीधा कर रहे हैं। इसीलिए आज वहाँ की कौम भी और वह भी परेशान है। यह बात हमने सही कही है। अच्छा ये जैसे क्या नाम हमारे सबसे पहले जो बात करते हैं कि अल्लाह ने एक चीज़ बनाई दुनिया के अंदर, सबसे पहले जो बनाई है, तो आपको सलाम मालूम है? वो क्या बनाई है? यही पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखो हमारा आपस में मुज़ाकरा किसी दूसरे को हम जलील कर नहीं सकते हैं ना, नहीं। और ना मुसलमान की शान है कि दूसरे को बुरा भला कहे। पैगंबर ने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान आपस में एक दूसरे में भाई भाई हैं और एक दूसरे को मुसलमान दूसरे की बेइज्जत नहीं क्या करता है। आज तो सर भी कर रहे हैं। अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, किसी मकसद से आगे निकल रहा हूँ, है ये निकल गया आगे, दूसरों के पीछे हटा के। ये निकल गया आगे, क्या करेगा वो क्या करेगा? वो तो जो कुछ निकलना, जो अल्लाह ने के नबी ने हज़रत अली ने फरमाया कि जो इंसान दुनिया की आलोचना पे ध्यान देगा वो कभी कामयाब नहीं होगा। कामयाब वही शख्स होगा, इस कान सुनेगा, इस कान निकाल देगा, आगे बढ़ जाएगा, वो कामयाब होगा। अच्छा सबसे बड़ी जो हमारे अंदर कमी हुई है ना, ये इल्म की कमी हुई है। जबकि इस्लाम की जो इब्तदा हुई है, कुरान की आयत अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, लेकिन क्या हो गया? आज पीछे सबसे पहले आप पीछे हैं। तालीम नहीं है, तालीम के तो पर तवज्जो नहीं है। ना दीन की तालीम हैगी, ना दुनिया में तालीम हैगी। क्यों नहीं है? कि हमारे बड़े बेकार हो गए हैं। यहाँ इस गांव के अंदर, खेड़ा अफगान के अंदर, सिलसिला के अंदर आज तक किसी भी नवाब के, जो यहाँ पर नवाब कहलाते हैं, ज़िम्मेदार कहलाते हैं, उन्होंने आज तक ये हिम्मत नहीं पड़ी कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवा दे या डिग्री कॉलेज बनवा दे या बड़ा मदरसा बनवा दे। हाँ उन्हें कहो खां साहब सलाम मैं साले आ गया सलाम कर रहा, तो यहाँ बैठ के बैठ जा। मैंने 16 साल बच्चे पढ़ाए। जब मैंने बच्चे पढ़ाना शुरू कर दिया, मुझे यूँ कहा था पठानों ने, खास तौर से पठानों ने, और क्यों नहीं कहना पठानों ने, कि इन साले गरीबों को पढ़ा के तो आगे निकाल लेगा, हमारे शाने बैठावेगा, हम तुझे देखेंगे। तो उन्होंने जो वादा किया था मेरे साथ में, वो उन्होंने काम करके दिखाया था। लेकिन अल्लाह की ज़ात से जिन बच्चों को पढ़ाया, आज बच्चे पुलिस में भी हैं, डॉक्टर भी हैं, मास्टर भी हैं, सब काम में लगे हुए इंशाल्लाह। लेकिन वो साले फैल हो गए, मर गए, मर गए, जिन्होंने कहा था अल्लाह ने मार दिया। फैल तो होने थे वो, कि जो लोग दूसरे धोखा देते हैं वो कहाँ कामयाब हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मेरी आगे तमन्ना है कि यहाँ इंशाल्लाह अगर टाइम दिया, अल्लाह ने वक्त दिया और जो है वो चाबी हाथ में दी, तो यहाँ डिग्री कॉलेज भी होगा, मेडिकल कॉलेज भी होगा, और इंशाल्लाह जितने बेरोजगार लड़के लड़कियाँ उनको रोजगार देने का काम करेंगे इंशाल्लाह। रोजगार भी है और साथ में आखिरत की बात। हाँ तालीम, वो तालीम मेडिकल कॉलेज, तालीम की बात, मदरसा होगा इंशाल्लाह, जो यहाँ से लेके और डिग्री तक हासिल करके जो है बाहर निकलेगा बच्चा देश में, वो जो नाम ऊँचा करेगा भाई। हाँ देश का नाम भी रोशन हो, गाँव का नाम भी रोशन। जैसे मौलाना नौमान मस्ती ने कर रखा है कि वो डिग्री दे रहे बच्चों को, बच्चे बाहर निकल रहे, नाम रोशन कर रहे हैं उनका। हैदराबाद वालों ने कर रखा कि डिग्री दे रहे बच्चों को, बाहर निकल रहे, नाम कर रहे हैदराबाद का। तो फ्री तालीम होगी, उर्दू की, अरबी, फारसी, उर्दू सब फ्री तालीम होगी, इंग्लिश भी फ्री तालीम होगी इंशाल्लाह। वो तालीम की वजह से बंदा ना बहुत पीछे हो गया, और जितना तालीम से पीछे होगा जो समझो दुनिया की तरक्कियात से पीछे हो चला है। तरक्की होगी तालीम से। तालीम के माने तकवे के हैं, तालीम के माने हैं साफ सुथरा होकर चलना, आगे लेके बढ़ना, दीन को बढ़ना, दुनिया को लेके बढ़ना और हुकूमत कायम करना है। ये तालीम से कहा जा रहा। अच्छा अगर हुकूमत की बात की जाए, हमारे से एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जो खलीफा, जो पहले खलीफा कौन से थे? मतलब यहाँ हुकूमत में नहीं हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। पहले
ये आपने दूसरे नंबर के बताए, उनसे पहले उस्मान गनी, तीसरे के बताए आपने उनसे पहले वो हाँ क्या? अबू बकर। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। निकल जाते, देखो मैं आपको बता चुका पहले ही, हम मुसलमान आपस में एक दूसरे को निशान दिखाने के लिए आए हैं। सिर्फ बात ये कि हमारे दिलों तक और इल्म की और यकीन की सही बात पहुंचती रहे। हज़रत उमर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला पहले खलीफा है इस्लाम के, और आपने तालीम को ऐसा और तक़वियत को ऐसी बात बताई कि उनकी जो अहलिया थी, उन्होंने बताया कि मुझे थोड़ा मीठा खाने को जी कर रहा। आपने मशहूर बात सुनी होगी। उन्होंने फरमाया मेरे पास तो दाम नहीं है, तो आपने फरमाया कोई बात नहीं, मैं थोड़े दाम इकट्ठे कर करके कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। तो जिस वक्त में उनके पास वो पहुँचा, हरीरा हलवा जो पहुँचा, तो आपने पूछा ये कहाँ से आया? वो कहने लगी जी तो मैंने रोज़मर्रा के जो पैसे थे उनमें से चंद पैसे बचा करके ये चीज़ इकट्ठी कर ली है। कहा था जी। कहा था तो उस वक्त में ये फरमाया, बैतुल माल के अंदर एक कहलवा दिया कि आज से अबू बकर का वजीफ़ा इतना कम कर दिया जाए, ताकि वो इकट्ठा ना कर सके पैसे को, उस काम को ना करते। और यही पोजीशन हज़रत उमर फारूक की थी, उस्मान की थी कि उन्होंने बैतुल माल के अंदर एक राई के दाने के बराबर खर्च नहीं किया। अगर खर्च किया तो अपनी कमाई से खर्च किया, और ऐसा खर्च किया कि दूसरों को पता। जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जुमे खुतबा पढ़ रहे थे तो उन्होंने नया सूट पहन लिया जुमे के रोज़। तो जब नया सूट बोले, एक नौजवान खड़ा हुआ कि उमर फारूक रुक जा, ये नया सूट कहाँ से आया? तुम्हारी नया सूट पहनने कहाँ से आई? तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जुमे के बेटे उठने कहा कि नहीं, ठहर जा, कल परसों चदरा बटी थी, अखां बटी थी, उसमें एक चादर मेरी थी, एक मेरे अब्बू की थी। एक चादर मेरी थी, एक मेरे अब्बू की थी। उन चादरों को दोनों मिला के उनका सूट नया सिलवा के हमने दिया उनको। अब बताइए कसूर उमर कौन है? तो नौजवान शर्मिंदा हुआ और फ़ौरन बैठ गया कि नहीं, मैं गलतीवार हूँ। अच्छा, ये है तक़वियत की बात जो हज़रत ने बताई है। ये तक़वियत की बात है कि मुसलमानों को अपने इल्म के साथ उस पर अमल भी ज़रूरी है। अगर ऐसा इल्म हुआ जो बंदे ने इल्म तो कर लिया, इल्म तो सीख लिया, लेकिन उस पर अमल ना किया, तो ये बंदे का इल्म उसके लिए हुज्जत का बाइस है। जैसे कुरान के अंदर आता है, हदीस के अंदर आता है कि इल्म इंसान के लिए हुज्जत बन जाता है। कब? जब बंदा उस पर अमल नहीं करता है। तो इंशाअल्लाह हम सब लोग कोशिश करें, जो हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इल्म अता फरमाया है, वो दुनियावी इल्म हो या आखिरत का इल्म हो, हम उस पर अमल करने वाले बने। अगर अमल करने वाले होंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया को फ़ायदा होगा और हम सबको भी फ़ायदा होगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरतु जन्नतुल मक़ाम दोज़खुल हराम। अल्लाह ताला जो है सभी देशवासियों को अमन में रखे, भाईचारा कायम करने की तौफ़ीक़ रखे, और अल्लाह से दुआ करूँगा कि इंशाअल्लाह सबके अंदर भाईचारा कायम हो। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, आखिरी बात में सिर्फ ये कहेंगे आपसे, जो हमारे दर्शक देखने वाले व्यूवर्स हमारे, उन्हें कुछ पैगाम दोगे? बस मैं सबसे चाहता हूँ कि जितने भी दर्शक देखेंगे, मेरी बात को सुनेंगे, वो सब आप उसमें भाईचारा कायम करने का और तालीम के साथ आगे बढ़ने का काम करें। इसी के साथ बात पूरी करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत उम्दा बात है, और हज़रत ने बड़ी उम्दा बात कही है कि हम मुसलमानों से इसी तरीके से है ना, तालीम के साथ, यकीन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि और मुसलमान 2 मिनट की वीडियो में अपने हिकमत लाइन से भी बताऊँगा आपको। जी, ठीक है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।